where were we on the last turn? सर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स पे डिस्कशन हो रहा था. Yes, Anupam. What was the topic of discussion? Yes. सर सैम्पलिंग चल रही थी लास्ट क्लास में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप पढ़ा रहे थे. लास्ट Probability sampling techniques पे discussion हो रहा था. Okay, fine. So simple random sampling, and you जी. talked about the stratified random sampling, and Okay, fine, fine. I think that's to only cover. हाँ. सर क्लस्टर सैम्पलिंग लास्ट में क्लस्टर सैम्पलिंग हुई थी सर. Okay. सर क्लस्टर सैम्पलिंग को क्लियर करवा दीजिएगा. Cluster also. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. अभी करते हैं. अभी फिलहाल जितना आप लोगों को कल समझ में आया, कोई ब्रीफ एक नहीं. सर एक डाउट पूछना है मुझे. हाँ, पूछिए मैम. सर मल्टी फेज और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में डिफरेंस. Yes, speak up. मल्टी फेज और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हाँ, डिफरेंस. बोलिए ना. सर क्या होता है डिफरेंस? मुझे डिफरेंस नहीं पता है दोनों में. अभी बताते हैं. ठीक सर. हाँ, बता. अब मुझे वहां तक पहुंचने तो दीजिए. अभी तो मैं बेसिक ही बता रहा हूँ आपको. ठीक है. अभी आज की क्लास में ही बता देंगे. अगर ना बताए तो आप पहले याद दिला दीजिएगा क्लास खत्म होने पे. ठीक ठीक सर. ठीक है. ठीक. वैसे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या होता होगा ये? Right. So why shall we go for sampling? सैम्पलिंग क्यों करते हैं, पहले इसका जरा आंसर दीजिए आप लोग. सर अपनी लार्ज पॉपुलेशन को हम स्टडी करनी मतलब कर सकते हैं, बट उसमें टाइम बहुत है. अब बोलने का काम खाली एकता जी और समीर और दो चार लोग उन्हीं के पास है. आप लोग नहीं बोलते. सर पॉपुलेशन का हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन का. इस वजह से हमें It is not even feasible to go for elements. जा सके और अपने आप in case we are like approaching or all the kind of population. या सर. ठीक है. और अगर हम पॉपुलेशन के अगर हर एक एलिमेंट को स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सर सेंसस. सैंपल सर. सेंसस. There is some issue with the internet. Wait for a while. I can't hear you. Just wait for 2 minutes. It's like it's reconnecting. Hold on. So universe population. When each unit of the population
थोड़ा सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। Yes, sir. वेट कर रही हूँ। मैंने सबको एडमिट कर लिया है अब। एवरीबडी, ओके सर। nobody is there in the waiting room now. Sampling thing, and it's like yesterday we covered that why shall we go for sample, and if we are like going for sampling, actually we are looking to study about the population. हमें किस चीज के बारे में जानना है? Population के बारे में, right? So while studying the sample also we are actually looking to study the population. Now it depends how good a representative that sample is of that population, right? So yesterday we talked about two different broad classifications of sampling techniques. One is called as probability sampling technique and another one is called as a non-probability sampling technique. So in probability sampling technique, the first technique which we talked about was simple random sampling. And in simple random sampling, there was some sort of lottery system and the chances of rejection, or like the rejection were equal for all the elements of the population as well as selection. The chances of selection were equal for all the elements of that population. We also talked about that there are like two variations here, one with replacement and another without replacement. In with replacement, the samples which are taken in one phase are again, added in the original scheme of things. While in without replacement, once somebody is selected, is not again considered in the second stage. So that was simple random sampling, and then we talked about the systematic sampling, wherein we were taking the nth item. Every nth item was considered. We divide the population by the sample we require, and based on that we decide that after how many elements we are going to take that the sample. It's like the nth item every 10th or every 20th or whatever. So this is how this thing works, this systematic sampling thing. Then we talked about stratified random sampling. In stratified random sampling, what we did? Am I audible to you guys? You people are not responding. Is it like I am the only one? Yes, sir. Audible. Yes sir। Yes sir। फाइन फाइन। तो जरा बताइए ना, स्ट्रैटिफाइड क्या था, थोड़ा सा याद दिलाइए। सिंपल तो आप सबको पता ही है, जरा स्ट्रैटिफाइड वाला बता दीजिए बस। सर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन का हम एक स्ट्रेटा बनाते हैं जो कि होमोजीनियस हो जाता है। एक स्ट्रेटा नहीं बनाते हैं हम, पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्रेटास में डिवाइड कर देते हैं और विद इन द स्ट्रेटा जो होता है वो होमोजेनिटी होती है। सही। फिर उसमें हम सैंपल को चूज करते हैं जो कि उस पूरे के स्ट्रेटा को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जैक्टली, राइट। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा जी, तो बस क्लस्टर सैम्पलिंग इसी का कुछ थोड़ा सा अपोजिट कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि विद इन द क्लस्टर तो होमोजेनिटी होती है, लेकिन वो जो क्लस्टर्स होते हैं वो आपस में बहुत सिमिलर होते हैं। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप मान लीजिए आपको कंट्री के अंदर स्टडी करना है, ठीक है, तो उस केस में आप देखिए अगर यूपी के अंदर स्टेट्स देखें तो 5-6 अगर आपसे कहें कि यूपी के अंदर सिटीज देखें तो यूपी के अंदर 5-6 सिटीज जो एक जैसी हो तो आप क्या नाम लेंगे? यूपी के अंदर आपको मैं बोलूं कि एक जैसी जो सिटीज है जरा उनके थोड़े नाम बताइए, तो आप कौन से नाम लेने वाले हैं? कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज जो। हाँ जी, ठीक है। अगर 5-6 ऐसे सबर्ब्स आपको लेने हो तो कौन से लेंगे? सबर्ब्स मतलब टाउन जितने जो बड़े नहीं होते, या किसी मतलब सिटी जितने बड़े नहीं होते पर उसके आसपास होते हैं, तो लगभग एक जैसे ही हों, ऐसे कुछ नाम लेने पड़े आपको तो कौन से होंगे? लाइक कानपुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, जिसमें सभी में पूरा आ रहा है सर। नहीं, कानपुर को सुल्तानपुर से नहीं कंपेयर कर सकते, कानपुर सर उन्नाव, बाराबंकी। तो इस तरह से आपने खुद ही कह दिया कि ये जो है आपस में सिमिलर हैं, मतलब कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, तो ये लगभग एक जैसे शहर है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ऑल द क्लस्टर्स, सिंस द क्लस्टर्स आर सिमिलर, वी रैंडमली चूज सम क्लस्टर्स, राइट, एंड देन वी स्टडी दोस क्लस्टर्स प्रॉपर्ली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पूरे यूपी को हमने स्टडी कर रहे हैं, यूपी में हमने ये देख लिया कि ये क्लस्टर्स मिल रहे हैं, अब हमने रैंडमली क्लस्टर को चुन लिया, ठीक है। अब वो रैंडमली चुन लिया, हो सकता है कि प्रयागराज उसमें से हमने पिक किया, तो प्रयागराज को स्टडी कर लिया, तो मतलब क्या हो गया कि कानपुर, लखनऊ और वाराणसी और आगरा भी लगभग उनमें भी यही फाइंडिंग्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, मान लेंगे, ठीक है। यस सर। सपोज करिए आपको एक कॉलेज में, आप ज्यादातर लोग कॉलेज से जुड़े होंगे, ठीक है, तो एक क्लस्टर जो है आपका हो गया बीबीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या बीबीए फर्स्ट ईयर के जो सेक्शन है, मान लीजिए 3 सेक्शन है आपके यहाँ, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इनमें कुछ डाइवर्सिटी अंदर है ना। सेक्शन ए से सेक्शन बी अलग अलग होगा। सेक्शन ए में लड़के लड़कियां एक क्लासिफिकेशन, हॉस्टलर्स, डे स्कॉलर एक क्लासिफिकेशन, राइट, इनकम ग्रुप से एक क्लासिफिकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड दूसरा क्लासिफिकेशन। तो विद इन द क्लस्टर तो बहुत सारी हेट्रोजेनिटी है कि नहीं है? लेकिन क्या सेक्शन ए जो बीबीए का है वो सेक्शन बी बीबीए से बिल्कुल अलग है या सिमिलर होगा? तो सिमिलर होगा। इसको सिमिलर होगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल, हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्लस्टर है, तो बीबीए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में से कोई एक उठा लिया क्लस्टर और उसी को स्टडी कर डाला। समझ गए ना? तो क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम रैंडमली क्लस्टर को पिक कर रहे हैं, और क्लस्टर विद इन द क्लस्टर तो हेट्रोजेनिटी है, लेकिन एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से बहुत सिमिलर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? सर, तो जो हम क्लस्टर चूज करते हैं तो फिर वो पूरा स्टडी करना पड़ता है, कि फिर उसमें भी हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे? फिलहाल इस स्टेज में तो क्लस्टर चूज कर लेंगे, उसके बाद फिर उसके अंदर कुछ रैंडम सैंपलिंग कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। मतलब इस सैंपलिंग के अंदर फिर से सैंपलिंग टेक्निक लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड, देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपने, आपकी पीएचडी का क्या टाइटल है शालिनी जी, मतलब किस पे सोच रही हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। कि कौन से कंज्यूमर, वर्ल्ड के? डिजिटल मार्केटिंग में रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज से जुड़े हुए हैं, सबअर्बन से नहीं है, मतलब रूरल एरियाज में आप कंज्यूमर बिहेवियर देखना चाहते हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर रूरल एरिया तो इंडिया में बहुत सारा है जी, है ना। तो आप कैसे जाएंगे सारे उसमें? तो एक ना एक कोई ऐसी स्टेज आएगी ना जब पहले क्लस्टर चूज करोगे कि कहाँ पे करना है। हाँ, पहले तो आप ये डिसाइड करोगे ना कि भैया हमें उन्नाव जाना है, कि बाराबंकी जाना है, कि फतेहपुर जाना है, कि हमीरपुर जाना है, ऐसा डिसाइड करोगे ना कुछ। हाँ, हाँ। फिर जब वो डिसाइड हो जाएगा, तब उसके बाद फिर अंदर क्या करना है, वो बात की बात है। जैसे बैंक एम्प्लॉयज का कल हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक एम्प्लॉयज, बोले इंडियन इम्पैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडिया। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, तो अब इन इंडिया क्या पूरे इंडिया के बैंक्स में आप जा पाते हो? कभी नहीं जाते हो। तो पहले आप क्या चूज करते हो कि जो एक जैसी सिटीज हैं उनमें से कुछ सिटीज आइडेंटिफाई कर लें, और उसके बाद फिर कोई फर्दर जो सैम्पलिंग, जो मल्टी स्टेज पूछ भी रही थी अभी मैम, एक कोई पूछ रहा था मुझसे शुरू में, तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो जाएगी। मल्टी स्टेज में क्या होता है कि हम कई स्टेजेस में सैम्पलिंग को करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई हमें कहाँ क्या करना है। तो जब क्लस्टर्स को हम रैंडमली पिक कर रहे हैं तो वो क्लस्टर सैम्पलिंग है। अब उसके बाद अंदर हम कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक लगा रहे हैं वो हमारी बात की बात है, ठीक है जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रैंडमली या प्रोबेबिलिटी। हमने क्या किया, रैंडमली हमने क्लस्टर चूज करे। वहां पे हमने रैंडमली क्या किया, विद इन द स्ट्रेटा हमने जो लोग चूज किए वो रैंडमली किए, ठीक है। सिस्टमैटिक में हमने क्या किया, हमें नहीं पता था पहले में कौन आएगा, दूसरे में कौन आएगा, तीसरे में। हमने कहा हमारे 10वें आदमी को चूज करेंगे, तो सिस्टमैटिक हो गया जी, 10वां 11वां 12वां जो भी हमने चूज करा। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में एकदम नॉर्मल लॉटरी सिस्टम, ठीक है। अच्छा ये बताइए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ही सबसे सही टेक्निक है क्या? सोशल साइंस में क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? रैंडमाइजेशन हम क्यों करते हैं?
इससे क्या फायदा होता है? इससे सर बायसनेस कम होती है। हाँ, बायसनेस कम होती है, बिल्कुल सही। और कोई नुकसान भी है, सिर्फ फायदा है? हाँ, सर अगर हमारे सैंपल जो हमने लिए वो अगर सही ना हो, अगर हमने सोचा हम nth नंबर लेंगे और वो nth नंबर पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी बिल्कुल। और कोई बोलना चाहेगा? Anybody? Saving time. Which one is saving time, मोना जी? Yes, सर ये सैम्पलिंग रैंडम जो हम लोग करेंगे ये सेव करेगा टाइम एंड रिसोर्सेज। अच्छा, कैसे? How is it going to save time? Can you tell us? सेव करेगा टाइम, सर रैंडमली पिक करेंगे। उसके बाद रैंडमली जो लोग पिक होंगे वो पता नहीं रिस्पॉन्स देंगे कि नहीं देंगे, वो पता नहीं हमारे उसमें लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है। सर टाइम बचेगा, इकोनॉमी को बेनिफिट इकोनॉमिकली होगा, मतलब यही होगा, कम पैसा में हो जाएगा। कौन सा ज्यादा पॉपुलेशन इंक्लूड होगा इसमें। अच्छा, रैंडम सैम्पलिंग में? जी सर, रैंडम में देखिए जो फायदा है सबसे इंपॉर्टेंट ये है दैट इट इज अनबायस्ड। आप किसी भी तरीके का वहां पे पक्षपात नहीं है। और ये जरूर आपको डिफाइन करना है कि जिनसे आप रैंडमली चूज कर रहे हैं जिन लोगों को, वो सारे आपकी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। दिस इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन चांसेस। हाँ वो ठीक है, लेकिन मतलब ये कहने का है कि रैंडमली जिसे हम चूज कर रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जी सर। नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या क्या होता है? जो सबसे आसान है वो तो है कन्वीनियंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, परपजिट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जस्ट सैम्पलिंग, स्नोबॉल। चलिए बहुत बढ़िया, तो जरा बताना शुरू करिए फिर थोड़ा सा। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में अपने इच्छा अनुसार, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में सर अपने इच्छा अनुसार मतलब हम सैंपल चुन लेते हैं जो हमारे सुविधा अनुसार हो। और जस्ट सैम्पलिंग मतलब कि हम जज करते हैं कि हाँ यह हमारे रिसर्च को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको लेते हैं जस्ट सैम्पलिंग। और कोटा सैम्पलिंग मतलब कि एक निश्चित मात्रा ले लेते हैं। कोटा सैम्पलिंग में सर एक निश्चित मात्रा ले लेते हैं कि हाँ इतना एरिया में हमको रिसर्च करना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और कोई कुछ बताएगा? स्नोबॉल सैंपलिंग मतलब उसमें चेन सैंपलिंग होता है, मतलब एक लोग से रिसर्च किया, फिर एक लोग 2 लोग से पूछेंगे, 2 लोग 3 लोग से रिसर्च करेंगे, इस तरह से चेन बनता जाएगा। अच्छा, स्नोबॉल सैंपलिंग को चेन सैंपलिंग भी कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया। चलिए ठीक है, तो आप ये बताइए कन्वीनियंट सैंपलिंग कोई एक जने बता दे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। So yes, go ahead. Sir, in the target audience, if we can know the persons very conveniently, we get the person or audience, then we choose them only. Right. So there is no any there are no criteria. It's only that the person is willing to respond and we have chosen that person conveniently. तो क्या कौन सी सैम्पलिंग हो गई? ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग हुई। कन्वीनियंट सैम्पलिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाया, दिमाग नहीं लगाया, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, खाली ये है कि हाँ ये रिस्पांस देने में सक्षम है या देने को तैयार है और हमें इजीली एक्सेसिबल है, हमने उससे डेटा ले लिया, ये हो गई कन्वीनियंट सैम्पलिंग। नुकसान क्या है कन्वीनियंट सैम्पलिंग का कि पता नहीं वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन का पार्ट थे या नहीं थे, उनको उस चीज का कितना एक्सपोजर था। ठीक है, तो उनका रिस्पॉन्स की क्या वैल्यू है भगवान जाने। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग में हम कोई पेन नहीं ले रहे, जो आसानी से रिस्पांस दे रहे, देन उनको अप्रोच करके
रिस्पॉन्स ले रहे हैं। जजमेंट सैंपलिंग में हम क्या कर रहे हैं? जजमेंट सैंपलिंग में हम कुछ क्राइटेरिया लगा रहे हैं और उस क्राइटेरिया में जो लोग फॉल कर रहे हैं उनको ही हम अप्रोच कर रहे हैं, जो नहीं फॉल कर रहे हैं उनको हम अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे जैसे सपोज करिए आपको मैं बोलूं कि आप ऑनलाइन जो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन है जिन लोगों के पास है उनका डेटा कलेक्ट करिए, उनसे डेटा कलेक्ट करिए। तो उस केस में आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि इसके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है या नहीं है। जिसके पास है सिर्फ वही आपकी टारगेटेड ऑडियंस है। तो यहां आप पहले जज कर रहे हो, अगर उसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसका आप डेटा नहीं लेंगे। तो जजमेंट सैंपलिंग में हम जज करते हैं फिर अप्रोच करते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को। इसी को पर्पसिव सैंपलिंग भी कहते हैं, जजमेंट को ही। ठीक है। In judgment sampling, sir, we just put the criteria. Right. We follow a particular criteria and based on that criteria we approach the response. Okay, sir. Okay. Right. इसी को पर्पसिव भी बोल देते हैं। फिर और कौन सी बताई थी आप लोगों ने? कोटा सैंपलिंग। कोटा में क्या करते हैं? कोटा में हम कन्वीनियंट सैंपलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान है कि रिप्रेजेंटेशन सबका हो जाए। जैसे सपोज करिए एक कॉलेज है, ठीक है, एक मिनट म्यूट कर लीजिए आप लोग, आपको समझने में आसानी रहेगी। हाँ, कोटा सैंपलिंग क्या करते हैं? जैसे सपोज करिए एक कॉलेज था, अब मैंने आपसे कहा कि भैया जाओ और 300 डेटा कलेक्ट कर लाओ। 3 कोर्स चलते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम। अब ऐसा करते हैं कि 300 डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो कन्वीनियंट सैंपलिंग से हो सकता है कि जो पहले आपको 300 लोग मिले, आपने उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया और वो सारे बीकॉम के थे, कोई बीएससी का था ही नहीं, कोई बीए का था ही नहीं। ऐसा हो सकता है। ठीक है। पर्पसिव में मैंने आपसे कहा कि भैया जाना, जो अंडर ग्रेजुएट हो बस उनका डेटा ले आना। तो वहां पे गए, जो अंडर ग्रेजुएट थे, आपने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले हम बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट हो आ जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट हो नहीं तुम हमारे काम के नहीं हो, तुम हट जाओ। ठीक है। एक बोला हम तो एडमिशन कराने हैं, अभी 12th पास है, तो बोले अरे तुम कहाँ, हटो, तुम भी हटो। तो पर्पसिव में हमने, जजमेंट में हमने जज कर लिया कि भाई हमारा रिस्पोंडेंट है कि नहीं। फिर आई बात कि अब वहां पे मान लो बीएससी के बच्चे थे 2000, बीकॉम के बच्चे थे 1000 और बीए के थे 500, और आप गए थे 300 डेटा कलेक्ट करने। तो 300 जब डेटा कलेक्ट करने गए, आपको जो पहले मिल गया या जो ज्यादा मिल गया कर लिया, पता चला सारे साइंस को आ गए, तो आर्ट्स वालों का और कॉमर्स वालों का व्यू ही नहीं हमें पता चला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोटा फिक्स कर देंगे। ठीक है। तो हमने कोटा फिक्स कर दिया कि भाई ऐसा है, आप 10% जो है हर एक से लेकर के आइए, तो साइंस वाले भी हो जाएं और उसी के हिसाब से सेट कर दिया। ठीक है। कितने कितने करना है मान लीजिए, आप लोग बताइए। 2000 साइंस, 1000 कॉमर्स, 500 आर्ट्स, 300 डेटा कलेक्ट करना है, कितना कितना कलेक्ट करेंगे? चलिए थोड़ा Sir, according to the ratio, sir, according to the ratio, what's the ratio between? बताइए ना, तो डिवाइड कर दीजिए ना 300 को उस रेशियो में। सर जो 2000 में से 200 ले लेंगे, 500 में से 50-50 ले लेंगे। नहीं, 200 है, 1000 और 500 है। जी सर। किस रेशियो में डिवाइड करेंगी बताइए जल्दी से, क्विक से। आर्ट्स के 500 लोग हैं, 500, कॉमर्स के 1000, साइंस के 2000। 210-5 किस रेशियो में? हाँ जी मित्र जी बोलिए। 210-5 भाई थोड़ा धीरे बोल लो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर 210-5 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 210-5 17 हमें तो 1:2:4 होगा ना सर। 4:2:5। हाँ जी। 4 Sir, could you repeat the question, sir? Could you repeat the question, sir? 1/2/2 रुको Sir, actually, I'm not. हाँ, literally, sir, I'm now confused, sir. I'm now confused, sir. अरे एक सेकंड रुक जाइए। वीके को बोलने दीजिए। वीके जी, हाँ राइट श्रुति, वीके बोलो आप। सर एक संबंध 2 संबंध 2 के अनुपात में लेंगे।
ओ भैया मेरे 500 का डबल 1000, 1000 का डबल 2000 ना, तो क्या हो गया 1:2:4 हो गया ना, या 4:2:1? जी सर जी। क्यों प्रगति जी? Yes, sir. 4:2:1। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब 300 को उसी रेशियो में जरा डिवाइड करिए। आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ होता है? जी स्टैटिक्स में लागू है। मेरे पास नहीं है, मगर मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा। आप बताइए, मैं आपको ही सही गलत मान So, लूंगा। sir, wait a minute, sir. So, wait a minute. We are doing. I'm waiting. आज समीर जी, एकता जी, ये सब लोग कहाँ चले गए आज? 43. This. सर 171, 85 और 42। चलिए ठीक है, तो समझ Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. ओके। पॉइंट में आ जाता तो क्या करते आप लोग? Sir, exactly point में ही है. सर ये पॉइंट में आंसर सर ये पॉइंट में ही आ रहे हैं। Actually, when हाँ. राउंड ऑफ कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि उससे 2 सवाल पूछे बोले हो गया तुम्हारा। No, sir. No, sir. चलिए, तो यहाँ पे क्या किया हमने, सिर्फ ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो हमने कोटा सैम्पलिंग में क्या किया, हम ये अब डिसाइड करके गए कि हम 30 कितना बताया मैम आपने आर्ट्स वाला सुबह जी? सर आर्ट्स वाला 42। यस सर। आर्ट्स के 42 लोग लेने हैं, और उसके बाद 70 कितना बताया, 85, 171 हमें उसके लेने हैं, और 170 हमें 85 का डबल 170 लेने हैं साइंस के। कोटा फिक्स कर दिया तो हमें सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन मिल गया। लेकिन आर्ट्स वाले जो हमने चुने वो कन्वीनियंटली चुने, साइंस वाले भी कन्वीनियंटली चुने, और वो जो थे अपने कॉमर्स वाले वो भी कन्वीनियंटली चुने। Am I like are you guys clear on this everyone? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये हो गई कोटा सैम्पलिंग। उसके बाद अपनी स्नोबॉल सैम्पलिंग बता रहे थे आप लोग, चेन सिस्टम जरा बताइए क्या था? इसमें सर रिसर्चर जो रिसर्चर होता है वो अपने सैंपल को पहुंचने के लिए जिसको टारगेट करता है उसके थ्रू उसको दूसरे लोगों की भी जानकारी होती है, और इस तरीके से वो अपने जो है सभी टारगेटेड सैंपल तक पहुंच पाता है। तो इसको ही हम लोग स्नोबॉल बोल सकते हैं। ज्यादा क्राइम वाले केसेस को सॉल्व करने के लिए इसका ज्यादा यूज किया जाता है शायद से। कौन से क्राइम वाले? हाँ सर, उसमें एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा नहीं मैम, मैं देखता नहीं क्राइम पेट्रोल, मुझे पता नहीं। मुकेश आप बताओ। सर रेफरल सैम्पलिंग, इसको रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग में। जैसे कि हम किसी से डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसी से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हम फर्दर आपके जैसा ही मतलब इंफॉर्मेशन रखने वाला और दूसरा बंदा मुझे कौन मिलेगा, तो उसके थ्रू हमें की इंफॉर्मेशन भी पता चल जाती है, फिर हम उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये चेन लगातार चलता रहता है। इससे हम ड्रंकर्स की जो इंफॉर्मेशन होती है हम इसके थ्रू ड्रंकर्स जो ड्रंक वगैरह करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं सर। ऐसा नहीं है कि ड्रंकर्स की इंफॉर्मेशन ही लेते हैं, ड्रंकर्स की कुछ भी एग्जांपल। हाँ बोलिए। रिलेटेड हमें कोई सर्वे। जी रुक जाइए, आशीष जी को बोल लेने दीजिए, कभी कभी बोलते हैं। आशीष बोलिए प्लीज। सर स्नोबॉल सैंपलिंग में हम मतलब कि किसी एक पर्सन को करते हैं और उसके थ्रू वो किसी और को जानता है जो उसी के एरिया से रिलेटेड कर रहा है, फिर उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो अगर जैसे हमको इंफॉर्मेशन लेनी है कि कितने लोग जिनके पास घर नहीं है, तो अगर किसी एक पर्सन को हमने जाना तो उनके साथ और भी जो लोग रह रहे हैं उनके पास, तो उनसे इंफॉर्मेशन ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ चलिए, और बताइए मोना जी आप। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे HIV रिलेटेड हमें कोई सर्वे गैदर करना होगा डेटा, तो हम जो HIV विक्टिम्स होंगे वो तो इजीली रेडी नहीं होंगे बोलने के लिए, तो वॉलंटियर्स के थ्रू हम इसको एसोसिएट करके हम उसे डेटा कलेक्ट कर सकते। स्नोबॉल सबसे अच्छा उदाहरण है सर कोरोना का, जैसे चेन देखते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा डराने वाले एग्जांपल दे रहे हो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मुझे पता करना था कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, तो अब यहीं पे मैंने पहले 1-2 लोग ढूंढ लिए कि भाई आपके पास है क्या? आपने कहा हाँ है। फिर मैंने कहा अच्छा 2 लोग बता दो जिनके पास और होगा।
तो 2 आपने बता दिए, फिर उनके पास गया, उनसे भी 2 2, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, इस तरीके से करके मैंने अपने वो जो भी फिगर था, जितना सैंपल साइज कलेक्ट करना था, वो ढूंढ लिया। ठीक है, इसको स्नोबॉल मगर क्यों कहते हैं? सर जिस तरीके से धीरे धीरे हमारा जो डेटा होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें गैदर करनी होती है, वो बढ़ती जाती है और सैंपल भी बढ़ता जाता है, इसलिए स्नोबॉल बोलते हैं। अच्छा, हाँ मुकेश बताओ यार। सर जिस तरीके से स्नो जो होती है वो गिरती है और मतलब एक ढलान से गिरती है और आपस में लपेट जाती है चीज, मतलब बर्फ को लपेटते लास्ट में बॉल बन जाता है, मतलब इस तरीके से, इस वजह से हाँ, ऐसा होता है कि जब स्नोफॉल होता है तो बर्फ का अगर कोई टुकड़ा पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ जब वो आ रहा होता है तो अपने साथ में काफी सारे वाटर वेपर्स को वो रोल करता जाता है, तो लेयरिंग होती जाती है और उसका साइज इंक्रीज करता जाता है। यानी जब वो हाइट पे था तो उसे काफी मतलब आप ये कह सकते हो कि उसका साइज काफी कम था, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है तो उसमें बर्फ के पार्टिकल्स और स्नो के पार्टिकल्स ऐड होते जाते हैं, लेयरिंग होती जाती है और नीचे आते आते उसका साइज काफी बड़ा हो जाता है, राइट? इसलिए इसको स्नोफॉल भी कहते हैं। ये सब है जी, बोलिए। सर इसको नेटवर्किंग सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं? मैंने पढ़ा नहीं है अभी किसी किताब में, स्नोबॉल ही सुना है, बाकी अच्छा, बोलने को तो अपने समझने के लिए आप मान लीजिए। ठीक है, ऐसे तो MLM होता है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग। यस सर। जैसे एमवे या वेस्टीज या और इस तरीके की कई कंपनीज थी। हाँ। तो खैर स्नोबॉल सैंपलिंग में जनरली थोड़ा सेंसिटिव नेचर की सर यूजीसी के क्वेश्चन में आया हुआ है स्नोबॉल, इसको नेटवर्किंग मार्केटिंग कहते हैं। उसमें नेटवर्किंग के थ्रू ही पूछा था, क्वेश्चन आस्क किया हुआ था, एनटीए में एक साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत खुशी हाँ की सर। बात, बहुत खुशी की बात है, मैं कह तो रहा हूँ। चलिए, तो सैम्पलिंग मोर और लेस हम लोग समझ गए। अच्छा, अब ये बताओ सैम्पलिंग में गड़बड़ कहाँ होती है, कहाँ पे एरर हो सकता है? सर डेटा कलेक्शन करना, ये डिस्टर्बेंस तन्वी म्यूट कर लो, तन्वी म्यूट योरसेल्फ। तन्वी जी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? मुकेश बोलो। सर पहली प्रॉब्लम आती है कि हम सैंपल को चूज जो करते हैं वो कितने अमाउंट में करते हैं, मतलब उनका रेशियो या फिर उनका जितना सैंपल चूज कर रहे हैं वो कितना हो। बिल्कुल सही है, बात कर रहे हैं पूरे इंडिया की, 100 सैंपल साइज में कह रहे हैं हो गया भैया। जिससे मेरा डिसर्टेशन लोगों ने बनाई थी एमकॉम लेवल पे, तो 100 लोगों पर रिसर्च करके पूरे इंडिया का पर्सपेक्टिव बता दिया था। एग्जैक्टली। एक ये प्रॉब्लम, जैसे बहुत से लोग करते क्या है कि स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो फाल्टी चूज द सैंपल साइज कह सकते हैं। हाँ, सैंपल साइज की बात हो गई, लेकिन कई बार ये भी होता है कि जिनका डेटा कलेक्ट करे ट्रू रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। जी। फिर दूसरा सर ये है कि लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। माधवेंद्र प्लीज रिपीट करो भाई। नंबर ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करते। हाँ, एक सेकंड माधवेंद्र बोलिए प्लीज। सर जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं हमारे, उनके पास जो सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती, लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, तो ये भी एक कहीं ना कहीं लिमिटेशन है सैम्पलिंग की। ओके, और बताइए। सर जैसे कि अभी एनटीए का मतलब एग्जाम हुआ है, तो उसका मतलब यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे कट ऑफ आ रहा है, तो उसमें सैंपल 200-400 स्टूडेंट का सैंपल ले रहे हैं, तो कट ऑफ निर्धारित कर, हाँ इतना कट ऑफ होगा, जनरलाइज कर दे रहे हैं। जबकि रिजल्ट आता है तो कुछ और आता है, कट ऑफ और आता है दूसरा। तो सैंपल मतलब स्मॉल लेवल पर हम कर उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जनरलाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे एक आप बताइए, आप बता रही थी पहले। और देखिए, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो सैंपल है वो हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि क्या सैंपल जो है वो हमें जो रिस्पांस दे रहा है वो इंगेज होके दे रहा है या अनइंगेज रिस्पांस है। ठीक है, अनइंगेज रिस्पांस का मतलब क्या हुआ कि वो पढ़ के आंसर कर रहा है या वो ऐसे ही बिना समझे ही आंसर करता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि क्या
पॉपुलेशन के जितनी भी पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन है, क्या हमने उस हेट्रोजेनिटी को कवर कर लिया है अपनी सैम्पलिंग टेक्निक से कि नहीं? तो वहां पे अगर कुछ डिफरेंस होता है तो भी हमें ट्रू पिक्चर नहीं मिल पाती है। और आपको सिर्फ एक बेस लाइन बॉटम लाइन याद रखिए कि सैंपल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अपने काम को आसान बना रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस अवर एफर्ट, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द सैंपल। अदरवाइज आइडियली वी शुड हैव गॉन फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। यानी सेंसस हम करते, हम सैंपल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबके हर एक एलिमेंट को कैटर करने में कैपेबल नहीं है, पर हम इंटरेस्टेड हैं कि हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानें। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी सैम्पलिंग टेक्निक हम यूज करने वाले हैं उससे हमको एक सही रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, और वो सैंपल ऐसा भी हो जो एक्सेसिबल हो। क्योंकि नॉन रिस्पॉन्स एरर भी, आपने क्वेश्चनर भेजा, उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, ठीक है। इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब क्वेश्चनर का से कभी डेटा कलेक्ट किया आप लोगों ने? अरे कोई कुछ बोलेगा? नो सर। नो सर। चलिए मैं एक क्वेश्चनर आज आपको शेयर करूंगा, आप उसको गूगल फॉर्म पे बनाइएगा। अच्छा, गूगल फॉर्म पे बनाना आता है आप लोगों को कि नहीं आता है? यस सर। यस सर। एवरीबॉडी? इट्स लाइक नो सर। नो सर। यस सर। ओके फाइन। बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, बिल्कुल। मतलब आप थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे तो समझ जाएंगे। और अगर आप चाहें तो मैं अभी थोड़ी देर 10 मिनट क्लास में बता भी दूंगा। लेकिन नॉन रिस्पॉन्स एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन रिस्पॉन्स एरर मतलब क्या है कि उसने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, ठीक है। तो आपको उसको रिमाइंड कराना पड़ेगा या फिर आपको उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। कंप्लीट रिस्पॉन्स एक बहुत बड़ा इशू है। इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि उन्होंने कुछ चीजें तो भरी और कुछ खाली छोड़ दी, तो आधा अधूरा रिस्पॉन्स वो भी गड़बड़ करता है। अनएंगेज रिस्पॉन्स में जैसे मैंने बताया कि अब वो अगर सामने वाला बिना सुने आंसर कर रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब उसके रिस्पॉन्स की कोई वैल्यू नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ लाइक इफ देयर इज समबडी हु इज ऑलवेज सेइंग अ yes or he was always saying a no, it means that he is not actually understanding the question, not actually representing the reality in his responses, in his or her responses. तो आपको जब रियलिटी नहीं पता चलेगी तो कैसे आपके जो मतलब रिजल्ट्स होंगे वो कैसे पता वो आएंगे, है ना। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। आप जब भी अपना कुछ भी कलेक्ट करें डेटा, तो इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चनर शेयर करूंगा जो मैंने एक बार आपको पहले भी दिखाया था ना। डू यू रिमेम्बर दैट? यस सर। यस सर। मैं अभी शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। आपको करना क्या है, उसका गूगल फॉर्म बनाना है। कोई एक लोग बना लेना, सब लोग मत बनाना। और उस गूगल फॉर्म को जरा लोगों से फिल करवाना, ठीक है। अगर आपके जान पहचान में कोई आईटी एम्प्लॉइज हो तो उनसे भरवाना, ठीक है। अगर नहीं हो तो मत भरवाना, क्योंकि सही लोगों का डेटा चाहिए, समझ गए। और फिर कोशिश करके देखो कि कितना भरता है। कर पाओगे आप लोग? मतलब आपको है इंटरेस्ट इसमें? यस सर। कर लेंगे सर। ओके फाइन। तो मैं शेयर कर दूंगा उसको गूगल फॉर्म में, या सभी लोग एक बार एज ए प्रैक्टिस गूगल फॉर्म में बना लेना। कभी ना कभी तो आपको बनाना ही पड़ेगा, लेकिन शेयर एक ही लिंक करना जो मैं दूं, ठीक है। ओके सर। क्योंकि फिर जो है रिस्पॉन्स एक जगह हो तो ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि सब लोगों के फॉर्म में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो मैं फॉर्म शेयर कर दूंगा आपको। अब मैं आपको जरा बता देता हूँ कि गूगल फॉर्म पे कैसे क्वेश्चनर बनाना है आपको, या एक कोई क्वेश्चनर दिखा देता हूँ, ठीक रहेगा? आर यू इंटरेस्टेड? यस सर। ओके, यस सर। फाइन। Yes, sir. Right. Just give me a second. Let me first of all open a questionnaire and then I'll. सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ प्लीज पूछिए। सर जैसे आपने बताया क्वेश्चनियर को भरवाते समय हम उनको कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कौन कौन से ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जो उनको दे सकते हैं?
पेन से ज्यादा कभी मत देना कुछ भी। यस। पेन तो वो खुद ही लेके चले जाएंगे तुम्हारा। ओके सर। सर मॉनेटरी इंसेंटिव दे सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अलाउड नहीं है ना? कितनों को दोगे भैया, रिसर्चर हो तुम। यस सर, वही तो। और फिर ऐसे केस में वो हो सकता है सिर्फ हाँ ही हाँ करने लगे। यस। है ना, मॉनिटरी तो लास्ट भी नहीं, मतलब मॉनिटरी के चक्कर में मत पड़ो। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। पूछिए मैम। सर जैसे जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें सैम्पलिंग में से 2 टेक्निक्स आपने बताई, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही रिसर्च में आप दोनों तरीके की टेक्निक्स को यूज करके सैंपल कलेक्ट करें? जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं कॉलेज स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कॉलेज बोर्ड जाती हूँ डेटा कलेक्शन के लिए जो मेरे लिए कन्वीनियंट है, बट उसमें से मैं रैंडमली उन स्टूडेंट्स को रैंडमली पिक कर लेती हूँ, ऐसा हाँ, कुछ। हाँ बिल्कुल, मल्टी स्टेज हो जाएगा ना, मल्टी स्टेज। अलग अलग स्टेज में अलग अलग सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज कर रहे हो। तो उसको सर जैसे हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखेंगे तो उसमें सर कौन सी टेक्निक लिखेंगे? मल्टी स्टेज। तो सर मल्टी स्टेज सर प्रोबेबिलिटी का पार्ट आपने बताया हुआ है। आप प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी पे इतना क्यों परेशान है? आपको ये देखना है कि सैम्पलिंग जो है वो कौन सा है, आपकी टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है, उसको सही से रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। अच्छा, तो उसमें बताना नहीं पड़ता है हम लोग को? आपकी जो प्रॉब्लम है जिसके लिए आप स्टडी कर रहे हैं उसको आप जब डिफाइन करोगे तो टारगेट ऑडियंस डिफाइन करोगे। जी सर। तो वो टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करने के लिए जो सैम्पलिंग टेक्निक सुटेबल होगी, वायबल होगी, आप उसके लिए जाओगे। आप इतना मत सोचो कि वो प्रोबेबिलिटी है कि क्या, वो आपके गाइड बता देंगे आपको। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और अब जैसे जजमेंट सैम्पलिंग ज्यादातर यूज होती है या स्नोबॉल यूज हो रही है आजकल, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में अगर आप आओगे सोशल साइंस में तो कई बार रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। ठीक है, अगर सैम्पलिंग फ्रेम में जरा सी भी चूक हुई तो रिजल्ट्स पूरे गड़बड़ हो जाएंगे। गड़बड़ का मतलब आपको ट्रू रिप्रेजेंटेशन मिलना टफ हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, साइंस को हम लोगों ने बहुत ओवररेट कर रखा है। एक बार एक स्टैटिस्टिशियन थे और उनको अपने परिवार के साथ कहीं जाना था, एक नदी पार करनी थी। तो स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया कि उन्होंने एवरेज हाइट निकाली अपने फैमिली की और नदी की एवरेज डेप्थ नाप ली। तो एवरेज डेप्थ जो थी वो एवरेज हाइट से काफी कम थी। काफी कम क्या मतलब, कम थी। तो उन्होंने सब बच्चों को, सबको ऑर्डर दे दिया कि सब लोग निकल जाओ, पार कर जाओ, सब पार हो जाएंगे। और जब वो आगे बढ़े तो उनका बच्चा गड्ढे में घुस गया। ठीक है, तो रियलिटी को कैसे सही से समझना है वो इंपॉर्टेंट है। किसी टेक्निक या किसी डेफिनेशन को पकड़ के बहुत ज्यादा चलना, ये मुझे नहीं मतलब बहुत ज्यादा समझ में आता है। हाँ, ईमानदारी से डेटा कलेक्ट हो जाए, ईमानदारी से सही रिप्रेजेंटेशन मिल जाए और बिना दबाव के, बिना बायसनेस के रिस्पॉन्स कलेक्ट हो जाए, ये इंश्योर करना है। और रिसर्चर अपना परसेप्शन रिसर्च से दूर रखे, ये इंश्योर करना। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या सिस्टमैटिक सैंपलिंग करने से मिल रहा है डेटा तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, उसके लिए जाइए। नहीं तो फिर जजमेंट है, ये जजमेंट के लिए जाइए या स्नोबॉल के लिए जाइए। राइट, एनीवेज मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन जल्दी से। अब भैया देखो, ये कुछ गूगल फॉर्म जैसा आया आपके पास? यस सर। थोड़ा सा जूम कर देता हूं और यस सर। ठीक है, अब ये एक तरीके का गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, बनाना बहुत आसान होता है और कुछ नहीं, क्वेश्चंस बस ऐड करते जाओ। ये यहां पे आप आओगे ना, ऐसे ऐड क्वेश्चन करके आ जाता है, जैसा क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, ऐड इमेज, ये वो मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स है कि ड्रॉप डाउन है,
ठीक है, सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है आराम से। आप मल्टीपल चॉइस है तो देखो यहाँ पे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन डालना है, ठीक है, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पे ऑप्शन यूजी, पीजी, जितने ऐड करने हैं करते जाओ, ठीक है। यहां पे देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या किया, ये स्केल वाला हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस हो गए। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, बहुत आसानी से बन जाता है। कोई भी इसमें बहुत टेक्निकल चीज नहीं है। ये लीनियर स्केल से आ जाता है, स्केल वाला, ठीक है। चेक बॉक्स से मल्टीपल आ जाएगा, जैसे किसी के एक से ज्यादा रिस्पॉन्स लेने हैं तो मल्टीपल चॉइस में आपको कोई एक रिस्पॉन्स को आप कर सकते हो। यहां पे ट्राई करो। अगर आपको क्वालिटेटिव के लिए जाना है तो ये पैराग्राफ या शॉर्ट आंसर इस पे जा सकते हो। कुछ नहीं करना है, गूगल पे गए, ठीक है, गूगल फॉर्म्स खोला या ड्राइव पे जाके न्यू फॉर्म कर लिया, गूगल फॉर्म, ये फ्री ऑनलाइन क्रिएटर, गूगल वर्कस्पेस, गूगल फॉर्म, ये सबको कहीं पे क्लिक करो। ये आ गया स्टार्ट अ न्यू फॉर्म, ब्लैंक अनटाइटल्ड फॉर्म, तो ये बना दो, इसका नाम कुछ डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस जैसा चाहिए वैसे बना डालो, ठीक है जी। यस सर। तो I'll be sharing a questionnaire. I want you guys to just give it a try, everybody, right? And show me that what type of questionnaire have you formed. अलग अलग तरीके का ट्राई करके देखो। आजकल गूगल फॉर्म से बहुत सही हो गया है, कहीं जानना नहीं पड़ता है ज्यादा, बस फॉर्म आप भेज दीजिए, लिंक, लोग आसानी से फिल कर सकते हैं। ठीक है, so is it making sense to you whatever we have studied today, like non-probability sampling techniques and this questionnaire form, different type of errors, sampling errors and non-sampling errors, so this we have covered. इसको जरा CR कोठारी में देख लीजिएगा एक बार आसानी से, और कोई एक लोग मुझको जरा मैसेज करना, माधवेंद्र आप करोगे? I'll share with you something, then you can share it with others. माधवेंद्र लग रहा है नहीं। मुकेश, you have my number ना? तुमने मुझे एक बार मैसेज किया था? No sir, message. Sir, I also have my सर मैं कर दूं? I also have your number sir. एक जन मुझे अपना नाम लिख के भेज देना, that you are a research scholar, ठीक है? यश पंडित कर देंगे। यश पंडित कर देंगे, ठीक है, कर दो यश, कोई भी कर दो, एक जन कर मैंने दो बस। कॉमर्स ग्रुप में CR कोठारी की PDF बुक डाल दी है, मेरे पास थी तो। बट कैसे मई जून तक में फिक्स हो जाएगी और इधर सर्दी तक में शादी। ये तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, मुझको एक जन कोई मैसेज कर देना बस, ठीक है, कोई एक, दैट्स इट, ठीक है। यश, यस चलो एक जन कोई कर देना बस, मैं लिख देना कि आई एम अ PhD स्कॉलर, मुझे याद दिला देना कि तुम मेरे ग्रुप के इसके हो बस, ठीक है। तो मैं कुछ टेक्स्ट आपसे शेयर करूंगा, वो शेयर कर देना बाकी लोगों में भी। ओके सर। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लीजिए, थैंक यू सर। उसके बाद आराम से अगली क्लास करिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। टुमारो विल बी, कल क्या करेंगे हम लोग? SPSS बताऊं कल? यस सर। तो SPSS है तुम लोगों के पास सॉफ्टवेयर? नो सर। नो नो सर। सर।
अच्छा चलो, आई विल डू समथिंग, आई विल ट्राई समथिंग। नो सर, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बढ़ा दीजिए सर। अरे यार SPSS तो आप पहले एंट्री तो सीखो डेटा की, ओके सर। वो तो बताएंगे ही रिलायबिलिटी वैलिडिटी। SPSS पे किसी ने डेटा एंट्री करी है पहले क्या? नो सर। अभी नहीं, चलो कोई नहीं, कल देखते हैं। चलिए, ओके जी, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम, बाय।